Hello students, welcome once again in our SST class. Today we are going to continue chapter first of economics, that is the story of village Palampur. Students, in this story we have already discussed how the farmers survive, how they produce, what kind of organization of factors they use to grow their farm. So now as we know that they try to increase their farm products. So after increasing their product, what can they do? Is they sell their surplus farm produce? Where they sell? Who sell? These are some of the questions related to today's topic. As we know that for growing more plants, for growing more production, they try to use some scientific method for increasing their product, right? We know that they using multiple cropping system, they using HYV seeds, chemical fertilizer, etc. And by the help of these things, they growing more, they start producing the surplus on their land. So let us suppose that the farmer have produced wheat on their land using the three factors of production: land, labor and capital. Then the wheat is harvested and production is complete. Now what do the farmers do with surplus? मान लेते हैं कि farmers जो हैं ये नई मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए वीट उगा रहे हैं फार्मर्स और उन्होंने ये जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनका इस्तेमाल किया और बहुत सारा अनाज उगाया. अब जब उनके कंजप्शन के बाद एक्स्ट्रा अनाज उगाया तो उसका क्या करेंगे? व्हाट दे डू? स्टूडेंट्स, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर देयर फैमिली कंजप्शन. वो अपने फैमिली कंजप्शन के लिए उस एंटायर वीट का कुछ हिस्सा रखेंगे. एंड देन व्हाट कैन दे डू विद द सरप्लस? They sell the surplus in the nearby villages or town. आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पिक्चर दी हुई है, आपने उस पिक्चर को देखा होगा कि विलेज पालमपुर में बुलक कार्ट पर गेहूं की बोरियां लेकर के और फिर जा रहे हैं सेल करने. तो सिमिलरली दिस थिंग हैपन. दे यूज बुलक कार्ट, दे लोड एंटायर सरप्लस थिंग्स एंड दे sell the surplus produce in the nearby village, and after selling in the nearby village, the villagers, the shopkeepers sell these things to the nearby town. So it means, so it is the medium and the large farmers only who supply wheat. The small farmers not having the as much sufficient land they required, right? जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास तो इतना लैंड होता ही नहीं है बेटा कि वो सरप्लस ग्रो कर सकें. इफ द लैंड इज लेस देन 1 or 2 hectare, this land is only fulfill the requirement of the farmer's family. They are not able to grow surplus. So it means in the village Palampur, the medium scale farmers who are having more than 2 hectares of land and the large farmers who are having more than 10 hectares of land, they are only growing the surplus produce. And after growing the surplus produce, they sell their produce, right? So Tejpal Singh, here I am going to give you the example of Tejpal. Tejpal Singh is the large farmer, has a surplus of 350 क्विंटल्स ऑफ wheat. तेजपाल सिंह पालमपुर का एक फार्मर है, लार्ज फार्मर है, जिसके पास 350 क्विंटल अनाज हुआ है फ्रॉम ऑल हिज लैंड. ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट. क्या किया उसने? उसने उस सरप्लस वीट को रायगंज मार्केट में सेल किया. वाई ही इज सेलिंग? फॉर गेटिंग द गुड अर्निंग्स, राइट? सो वॉट डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग्स? अब वो इस अर्निंग से क्या करेगा भाई? उसने सरप्लस तो अपना प्रोडक्शन सेल कर दिया
उससे उसको बहुत अच्छी अर्निंग हुई है, अब उस अर्निंग से क्या करेगा। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। लास्ट ईयर तो उसने अपना ज़्यादातर पैसा बैंक अकाउंट में डाल दिया था। लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ अ लोन। और उसके बाद उसने क्या किया उन पैसों का, उसने सविता जैसे फार्मर्स को लोन पर दे दिया जिन्हें ज़रूरत होती ना, द फार्मर्स हु वांट टू बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स। सो जस्ट लाइक दैट तेजपाल यूज द savings as to lending the money. So he also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season also. और नेक्स्ट सीजन में उसी जो एक्स्ट्रा इनकम है उसका जो उसने बैंक में सेव किया है उसका इस्तेमाल वो अपने जो भी वर्किंग कैपिटल चाहिए फार्मिंग के लिए उसको अरेंज करने के लिए भी करेगा। बट दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। पर इस साल की अर्निंग से क्या डिसाइड किया है तेजपाल ने, इस साल तेजपाल ने डिसाइड किया है कि वो ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। और जब वो एक और नया ट्रैक्टर लेगा तो उसकी कौन सी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज़ होगी। बेटा जो भी एसेट ट्रांसफॉर्मिंग होता है दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और जो भी कैपिटल जो भी पूंजी एक बार खरीद ली और लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ आए दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, लाइक लैंड, लाइक मशीनरी। सो ट्रैक्टर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मशीनरी एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट। Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earnings is saved and kept for buying capital for the next season. बिल्कुल तेजपाल के जैसे अदर जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो भी अपना सरप्लस क्या करते हैं, फार्म प्रोडक्ट्स का सरप्लस बेचते हैं और अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल। एक हिस्सा सेविंग के लिए रख देते हैं और बाकी हिस्से से अपना कैपिटल जनरेशन करते हैं। So thus they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. और इस तरीके से वो अपनी ही बचत से अपने कैपिटल अरेंज कर लेते हैं। Some farmers might also use the saving to buy cattle. और कुछ फार्मर्स जो हैं अपनी इन सेविंग का इस्तेमाल कैटल्स को परचेज करने में भी करते हैं या फिर ट्रक्स खरीदने में और टू सेटअप शॉप्स। सो एज वी शैल सी These constitute the capital for non-farm activities. तो अगर हम देखें तो इन सबसे क्या हो रहा है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स द वर्क विच इज़ अदर देन फार्मिंग इज कॉल्ड नॉन फार्मिंग। ऐसे काम जो फार्मिंग के अलावा किए जाते हैं उन्हें नॉन फार्मिंग कहते हैं। सो वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। वी शैल नाउ टू look at some of the non-farm activities, non-farm production which is happened in village Palampur. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. लेकिन पालमपुर में सिर्फ 25% पॉपुलेशन है जो अदर देन एग्रीकल्चर वर्क करती है एंड दिस अदर देन एग्रीकल्चरल वर्क इज़ नोन एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. So what kind of non-farming activities done in the village Palampur? Firstly, dairy. Dairy is the common activity which is done in the village Palampur. Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kind of grass and the ज्वार and बाजरा that grows during the rainy season. ज़्यादातर विलेज पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो कैटल्स भी रखते हैं, डेयरी फार्मिंग भी करते हैं. इसमें ज़्यादातर लोग पशु पालते हैं. बेसिकली द बफेलोज दे डोमेस्टिकेटेड और अपने बफेलोज़ के लिए वो जो रेनी सीजन में ज्वार बाजरा होता है वो उनके चारे का काम करता है. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज और उससे जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको रायगंज जो कि एक नियर बाय विलेज है उसमें सेल कराते हैं. 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज. रायगंज में एक चिलिंग सेंटर है जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट बनाया जाता है. वहाँ से फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़. वहाँ पर मिल्क इकट्ठा किया जाता है रायगंज में और रायगंज से फिर मिल्क को अदर
टाउन्स और सिटीज़ में बेचा जाता है, राइट। एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur, unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities. आजकल विलेज पालमपुर की कुछ फैमिलीज जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, और ये मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बड़े शहरों से अलग है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, बहुत ही आसान प्रोडक्शन मेथड को यूज़ करके ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, और ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें घर के सदस्य ही ज़्यादातर वर्क कर लेते हैं और आम तौर पर लेबर्स को हायर नहीं किया जाता। नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिश्री लाल। Mishri Lal has produced a mechanical sugar cane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. मिश्री लाल ने क्या किया है, अपने ही फील्ड में एक शुगर केन क्रशिंग मशीन लगा ली है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और हम जानते हैं कि पालमपुर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, पहले भी शुगर केन क्रश किया जाता था लेकिन बुलक्स की मदद से, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज डेज। आजकल लोगों ने मशीनरी से क्रशिंग करना ज़्यादा प्रेफर करना शुरू किया है। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। मिश्री लाल क्या करता है, कुछ तो अपने फार्म प्रोड्यूस से और कुछ अदर फार्मर से भी शुगर केन ले आता है, फिर उसको क्रश करके प्रोसेस करके उसको जैगरी में कन्वर्ट करता है, गुड़ बनाता है, एंड द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, और उसके बाद उस जैगरी को कहाँ भेज देता है, शाहपुर विलेज में। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, और इस प्रोसेसिंग से मिश्री लाल को छोटा सा मुनाफा होता है। सो द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, दिस इज अ काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डन इन पालमपुर। नाउ द थर्ड नॉन फार्म एक्टिविटी विच इज डन इन विलेज पालमपुर इज शॉपकीपिंग। People involved in trading, exchange of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in the village. कुछ लोग जो हैं शॉपकीपिंग में भी अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। ये शॉपकीपर्स क्या करते हैं, बड़े जो मार्केट होते हैं वहाँ से होलसेल मार्केट से चीज़ें लेकर के आते हैं और फिर उन्हें कहाँ पर सेल करना शुरू करते हैं बेटा, गांव में, विलेज पालमपुर में। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। आपने देखा भी है दुकानों पर छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं उन पर बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं, जैसे राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट एट्सेट्रा। सो अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हु हाउसेज are close to the bus stand have used a part of a space to open a small shops. They sell eatables too. तो जिनका भी घर नियर बाय बस स्टैंड वगैरह है जहाँ पे रश रहता है, जहाँ पर इजीली ट्रेडिंग हो सकती है, वहाँ पर उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा खुला छोड़ा है जिसमें वो इस तरीके के शॉपकीपिंग का काम करते हैं। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ करीम। करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने एक कंप्यूटर क्लास ओपन की है विलेज में। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। कुछ समय से शाहपुर शहर में ज़्यादा नंबर में जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं पढ़ाई करने। सो करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेज इन द टाउन। और करीम ने क्या देखा कि उसके अपने गाँव से भी, विलेज पालमपुर से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शाहपुर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, राइट। सो देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर। और साथ में उसको क्या पता चला कि 2 महिलाएं हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री भी है। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। उसने, करीम ने क्या सोचा कि वो उन महिलाओं को रोज़गार देगा। ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेज इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। और इससे क्या हुआ, उसने उन दोनों महिलाओं को एम्प्लॉय किया, अपने घर के एक हिस्से में, एक रूम में कंप्यूटर सेटअप्स कर दिए, और इन सब से क्या हुआ, इन सब से
एक कंप्यूटर क्लास भी रन हो गई, तो ये भी एक तरीके की एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। एंड द फोर्थ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इज ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. हमने देखा है कि बहुत सारे व्हीकल्स हैं जिनका इस्तेमाल रायगंज और पालमपुर की कनेक्टिविटी में किया जा रहा है, लाइक रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एट्सेट्रा. And people driving the traditional bullock cart and bogie, these are some of the example of transport services. They ferry people and goods from one place to another. आम तौर पर हमने देखा है कि बुलक कार्ट्स वगैरह जो हैं, रिक्शा वगैरह, इनमें क्या होता है, इसमें लोगों को बैठा करके सामानों को डाल करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है. एंड द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. और अगर हम देखें तो लगातार इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर लाइक अदर सच लेबरर्स. किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड. किशोरा पालमपुर विलेज में एक फार्म लेबरर है और जितनी उसकी अर्निंग होती है उससे उसका घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है. सो अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक. कुछ साल पहले किशोरा ने क्या किया, जब ज़्यादा परेशानी होने लगी तो उसने बैंक से लोन लिया. दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस. ये एक तरह का प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट के ज़रिए. गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम रन किया था ताकि गरीब लोगों को हेल्प की जा सके. किशोरा बॉट अ बफेलो विद दिस मनी, ही नाउ सेल द बफेलोज मिल्क. और किशोरा ने क्या किया, उस लोन का इस्तेमाल एक बफेलो ख़रीदने में किया और अब उसका मिल्क बेच करके वो इनकम जनरेट कर रहा है. यानी कि अदर देन फार्म लेबरिंग किशोरा एंगेज इन डेयरी फार्मिंग ऑल्सो. फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो. आगे चल के उसने क्या किया, उस बफेलो के साथ में एक वुडन कार्ट अटैच कर दिया एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम. और उस पर अब बहुत सारे सामान रख करके ट्रांसपोर्ट करने लग गया. वंस अ वीक ही गोज़ टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर. वो एक बार वीक में गंगा नदी के आसपास जाता है, वहाँ से मिट्टी भर के लाता है और पॉटर्स को बेचता है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जगरी. कभी कभार वो जगरी भी शाहपुर विलेज में पहुँचाने का काम करता है अपने बुलक कार्ट पे. एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट. और हर महीने उसको कुछ ना कुछ काम ट्रांसपोर्टेशन में मिल ही जाता है. सो एज अ रिजल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मोर देन वॉट ही यूज टू डू सम ईयर बैक. और इस तरीके से किशोरा जो है काफ़ी कैपेबल हो जाता है थोड़ा और अर्निंग करने में. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. इट मीन्स इन द विलेज पालमपुर most of the families are living there, basically 450 families, and out of 450 families not every family having their own land. Some are small farmers, some are large and some are medium. So the small farmers or the farmers who are not having their own land, which already called the farmless laborer, landless laborer, they are bound to do some other activities, and the activities which is other than farming is called non-farming. So in this chapter we are getting some farming and non-farming activities. Hope you understand entire chapter well. If you having any doubt, query, you can ask me. Thank you and have a nice day.